Is it okay now? Can we start? Okay. So let's now start with the session. Good evening, everyone. I'm Kirti, rank 304 in UPSC CSE 2025. It's a really a good opportunity. I would like to use this platform to share my strategy for the beginners as well as the ones who have attempted it before and what further they could improve. Let me start with my own journey. So this was my fourth attempt. I started appearing in UPSC Civil Services examination from 2021 onwards. So if I talk briefly about my journey, in 2021 I gave my first attempt in which I did clear prelims but could not clear mains. In 2022, again the same thing happened. I cleared prelims but not mains. In third attempt, that is in 2023, I went till interview stage but could not make it to the final list. And now, then finally, in my fourth and this last attempt, now in my this one attempt and fourth attempt, I finally got in and got selected as All India Rank 304. So it was indeed a very long journey. I started back in 2021. And if I talk about my preparation journey, it started back in 2019 and only. While I was in my undergraduation, I started preparing for civil services examination. Talking about that, I think one thing that could help every one of you is, so often the question comes, from where to start, how to start, and if someone is a beginner, then what strategy he or she should obtain, right? So if I talk about from the very start, from the very crux of it, from the very beginning, how you can start. See, I was in my second year of my college, of my undergraduation, and I had this thing very much clear in my head that yes, I'm going to prepare for civil services examination after my graduation. Okay. So, in that background, I started inculcating some habits. So, the first habit for every aspirant when he or she is starting preparation is to start reading newspaper. So these are the some general things that I would be telling, and then we could go into the aspects of specific prelims, mains, as well as interview stage. All right. So if I talk about general how to start, firstly one should start reading newspapers. So you could take any Hindu or Indian Express and just start reading it. Initially, there are certain challenges that come with it. What happens is ki kabhi kabhi it takes a lot of hours to study newspaper, but that's okay. In beginning, it might take like 2 to 3 hours to understand the news and everything. It might take some time, but eventually you will definitely get a good grasp of it, and you'll be able to complete comfortably the newspaper in 1 hour or something. But you have to start with this habit first, because once you get to know what exactly is going around, you will be able to understand that yes, uh, newspaper, because newspaper reading is the essential part of UPSC civil services examination. And then what one could do is, whenever one is starting preparation, I would suggest have it to, you could start in the middle of your of your graduation or something, so that you have ample of time in between your preparation, in between the beginning of your preparation and the actual attempt that you're going to give. All right. So what happens is, starting में you don't need to read newspaper की सब कुछ, that you have to read everything और याद भी रखना है उस चीज को, इस टाइप के माइंडसेट से तैयारी नहीं स्टार्ट करनी. स्टार्टिंग में just read the newspaper, try to understand what's happening around you, and then move ahead. First in newspaper reading, and then what I would suggest is NCRTs are there of history, geography from 6 to 12. Whenever you're starting preparation, that should be the first thing that you should be doing. Okay, so I would like to clarify right at the very beginning. So I'm seeing some doubts in the chat. So I would address those doubts in the end. You can just keep on asking the question in in the end of it. I would scroll through the chats and reply to everyone's doubt. All right. So once you start reading newspaper, just start with the NCRTs in the beginning of your preparation. From 6 to 12, there are NCRTs of history, geography, political science. So these should be read because that gives a very good base. NCRT act as a very good base. I would not say that one should totally rely upon NCRT during the whole course of the journey, but definitely if you're preparing for civils, once, at least once or twice, you must have gone through the NCRTs, because then only your base and core would be quite solid, and you won't realize it in the beginning, but when you start appearing, you will realize that in prelims examinations especially, if your core is very strong, which comes from the NCRT, you will be able to tackle the even the advanced level questions in a very good manner. So that's how it goes.
So once you are done with you've started inculcating the habit of newspaper reading, and then once you start doing NCRTs, once you have gone through the NCRTs, then you could shift to the core books. Once you have clarity of the concepts of NCRT, shift to the core books. I would discuss the sources in the end, but this is just a very broad outline I'm giving of how one should start preparation. All right. So these are one of I'll try to be bilingual, by the way. So someone is saying, please speak in Hindi. I will try to be bilingual. So to repeat again, जब भी the preparation start करो, start with the newspaper reading, and then gradually definitely read the NCRTs. Just starting में preparation start किए newspaper, NCRT, and then move to the core books. I would be shifting to the I will be discussing the core sources in a while. That's also part of the segment. So definitely उसमें थोड़ा patience रखिएगा. So, starting with what happens is whenever a person is starting preparation, so people think that we don't have that sort of guidance because, I mean, some people might be out there जो थोड़ा Delhi से भी away है and they don't know how to exactly start. So these are the basic steps that have to be done. And for more motivation, one can definitely see the topper videos on the YouTube channel, so that there are several strategies that even other toppers have discussed on how to start, how to be motivated, and what to do. And the second question that perhaps arises in the aspirant's mind in the beginning of the preparation is कि चलो ठीक है ये सब चीजें मैं कर लूंगा, but one common question that I've seen everywhere is कि whether to join coaching or not. So whether to join coaching or not is a very very personal decision. So for me, मैंने क्या किया था, एक्चुअली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट टिल 12th ऑफ स्टैंडर्ड, तो मुझे इतना ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका ज्यादा नॉलेज था नहीं तब तक. So I joined a foundation course at Vision IAS because I wanted to get a clarity and a good foundation at the very beginning. So वो मैंने start कर ली थी. That was very personal for me. But if someone who pretty much knows the basic concepts of the humanities, of polity, geography, history, then of course the coaching can be avoided. It's not compulsory कि भाई coaching करेंगे तभी ही हमारा selection होगा. That's not really the case. It's a very personal thing, a very personal choice. हर किसी को पता होना चाहिए where they are standing, what is the sort of knowledge that they have at present, and then decide accordingly. And once you decide the coaching, ठीक है, use that, make some notes, but totally relying upon coaching is also something जो हम recommend नहीं करेंगे. वो एक अच्छा स्टार्ट दे देती है, एक आपका फाउंडेशन बना देती है, आपको एक डायरेक्शन दे देती है बहुत अच्छा कोचिंग. बट मेहनत हमें खुद ही करनी है, हमेशा ये सोचना है, कभी ये नहीं सोचना कि कोई और ही हमारे लिए मटेरियल बना के दे देगा, सब कुछ कर देगा, है ना. ऐसे नहीं होता. दैट इज जस्ट अ बेसिक कोर फाउंडेशन दैट द कोचिंग प्रोवाइड्स. रेस्ट ऑफ द वर्क हैव टू डू, you'll have to build upon it. ठीक है. So this was the core strategy for how to start. Now let's go more particular about the things. Ki I'll be discussing first prelim stage, then main stage, then interview stage. After that, we could discuss about some general discussions like what was my motivation, या फिर social media, and every miscellaneous topic that would be addressed in the end once the core part is completed of preparation. ठीक है. So coming to the prelims, so in all my 4 attempts, I have cleared prelims. So what has really worked for me, I would definitely share with all of you. So prelims एक ऐसा stage है, 100 the format is very clear. 2 hours GS paper होता है दिन में, 2 hours शाम को CSAT होता है जिसमें English और Maths आती है. So if you talk about the morning session of GS, there's a full syllabus of UPSC that's there on the website that is notified in the Gazette. So you'll see the subjects are polity, geography, history, general science, economics, environment science. So these are the general subjects that are out there, and the questions in prelims are asked from these specific subjects. So prelims में I will share some source with you. तो एक broader strategy अगर हम prelims की देखें तो क्या होता है, 2 पार्ट है prelims के. One is the static portion, one is current affairs. What काफी लोगों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है कि लोग करंट अफेयर्स का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि दैट दे डोंट फोकस अपॉन द स्टैटिक. सी 70% फोकस जो भी स्टैटिक में आपके साथ बुक्स शेयर करूंगी सोर्सेज, उससे ही पढ़ना है. डेफिनेटली वो चीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए. 100 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में, ये माइंडसेट लेके नहीं चलना कि 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आते होंगे. दैट्स नॉट द केस.
So in prelims you have to use there might be some questions जिसके तुम्हें basics पता होगी, जो तुमने पढ़ रखे होगे, and approximately for everyone only 30 to 40 question comes in that area जिसका बारे में उन्होंने पढ़ रखा होगा. 30 to 35, मतलब इससे ज्यादा जनरली नहीं होते. That is the portion that is covered from your static. So if we multiply 35, then 70 marks are there जो static book से definitely आते हैं, 70 to 80 marks. And if you see the cutoff, it is generally like 90 or something. So if your static is very much prepared, then of course those 85 marks is something जो आपके hand में है. अब उसके आगे you use your analogy, your knowledge, your current affairs and relating them with the static part. So that has to be done. So talking about the static, पहले मैं सोर्स आपसे डिस्कस करती हूँ. So firstly मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी. स्पेक्ट्रम बुक है राजीव अहेज सर की. he is IPS currently. So that book is the only book for modern history that you need to go. उसके अपार्ट आपको कहीं नहीं जाना, because history as a subject is very long of course. तो हमें एक ही सोर्स पकड़ना है. स्पेक्ट्रम covers a maximum part of what is asked in the UPSC prelims examination as well as mains examination. So for that you can choose spectrum. उसको word to word पढ़ना है, उसको that book should be on your tips. If that's on your tips, then prelims में काफी questions easily tackle हो जाते हैं. And also spectrum में ये नहीं सिर्फ chapters पढ़ने, chapter के end में ना कुछ appendix होते हैं, appendix as well as कुछ आजकल personality based है, वो भी definitely पढ़ना है, because वहाँ पे सारा क्रक्स लिखा है स्पेक्ट्रम का. एंड प्रीलिम्स में छोटे मोटे फैक्ट्स कि इस गवर्नर जनरल के अंदर क्या हुआ था, ये अपेंडिक्स में काफी अच्छे से कवर्ड है. तो इस तरीके से हमें अपनी स्पेक्ट्रम पढ़नी है. सी फर्स्ट टाइम इट्स अ चैलेंज टू रीड इट. दिस थिंग गोज थ्रू एवरी सब्जेक्ट. पहली बार हम कोई बुक पढ़ते हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि पहली बार में पूरी लर्न हो जाएगी, दूसरी बार में भी नहीं होगी. 3-4 बारी मल्टीपल रिविजन्स करके ही आपको वो उस सब्जेक्ट का आइडिया होगा. तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना स्टार्टिंग में कि अरे इतना टाइम लग रहा है, इतनी मोटी बुक है. जस्ट स्टार्ट करना है, उसको बस फिनिश करने का टारगेट रखना है, सो दैट यू हैव अ ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ हाउ थिंग्स हैपेंड इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड सब्जेक्ट, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. आई रेफर टू पूनम दलाल दहिया. दैट्स अ वेरी गुड बुक ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. इट वेरी वेल एम्पली कवर्स मोस्ट ऑफ द सिलेबस. However, उसमें कुछ चैप्टर्स में ना काफी ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन है. फॉर इंस्टेंस मिडिवल हिस्ट्री में तो उसमें जैसे बीच में छोटी मोटी जो डायनेस्टी थे, यू कुड इग्नोर दैट, बट जो ब्रॉडेंड है आप उस बुक से कवर अप कर सकते हैं. पूनम दलाल दहिया इज अ वेरी गुड बुक फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री. एंड इफ समवन इज फाइंडिंग दैट बल्कि, देन देयर इज अ तमिलनाडु हिस्ट्री बुक, वो बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप वो पढ़ सकते हैं. दैट इज पर्सनली योर चॉइस. बोथ बुक्स आर वेरी गुड. आई चूज पूनम दलाल दहिया बिकॉज दैट बुक हैड सम वेरी गुड पिक्टोग्राफिक एंड बिग फॉन्ट्स, तो वो मुझे हेल्प करते थे थोड़ा ना to have that pictographic memory that helped me in the later stages. So that's about ancient, medieval and modern history. Thirdly, the subject comes art and culture. Ancient and medieval history और art and culture को अलग-अलग लेके चलना. आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, मोर देन सफिशिएंट. यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट. सो फॉर हिस्ट्री दीज बुक्स इफ यू डू इट ऑन टिप्स, एंड डेफिनेटली पहली बारी में नहीं होगा, मल्टीपल रिविजन्स लगेगी. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आराम से उसको पढ़ना है और मल्टीपल रिविजन्स उन्हीं बुक्स की करनी है, ना कि इधर उधर जाए हम कि हम एंशिएंट मिडिवल की भी 2-3 बुक्स पढ़ रहे हैं. ऐसी चीज नहीं करनी. ठीक है. बिकॉज दैट वुड क्रिएट मोर मेस इन योर हेड. ठीक है. So these are the history part. Next, coming to economy. In economy, I personally referred to Mrunal sir's book. So I know it's quite bulky. I understand. So when I started my preparation in 2019-20, that book was not that bulky. It was very, manageable. But with time, it has gotten bulky. But if you go through Mrunal once, you'll realize कि एक पेज में मुश्किल से 2-3 बातें ही है जो काम आती है बाद में. तो और उसमें ना मोस्टली जो पेजेस है उसमें पिक्टोग्राफिक चीजें दिखा के समझाने के पर्सपेक्टिव से ज्यादा, तो उसका बल्कीनेस देख के स्ट्रेस नहीं हो रहा. बट इफ यू डू मृणाल ऑफ इकोनॉमी, योर इकोनॉमी वुड बी प्रीटी मच सॉर्टेड. उसके ऊपर कुछ नहीं आता और उसमें काफी अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रखी है उस बुक के अंदर. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पॉलिटी. फॉर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत. No other book in the market is there which is as good as Lakshmikant. Lakshmikant plus Bear Act.
बेयर एक्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट भी साथ साथ अपने रखना, जो भी आप चैप्टर कर रहे हो पार्लियामेंट का अगर चैप्टर कर रहे हो तो बेयर एक्ट में से पार्लियामेंट के सेक्शन आर्टिकल्स देखना, बिकॉज दैट वुड रियली हेल्प। आजकल जो क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं बहुत जर्नलिस्ट काइंड के नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, एंड देन दे आस्क स्पेसिफिकली इन दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज मेंशन, तो इस तरीके से वो पूरा आजकल होता है। तो आजकल most of the toppers are referring to Lakshmikant as well as the Bare Act of the Constitution of India. These two books, you'll be good to go with Lakshmikant along with the current affairs, which I'll discuss ahead. ठीक है, current affairs का. And the next subject that comes is geography. In geography, I read PMF IS. It's a very good book both for the prelims as well as mains. अगर वो book कर लोगे तो इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना होगा, and everything is covered in a very holistic manner और बहुत अच्छे से उसमें conceptual understanding दे रखी है. And the next for environment, Shankar's book is very good for environment and the current affairs. उसमें more than sufficient है. General science में what you can do is, science में for your own conceptual clarity, what you can do is कि आप जो है 6 to 10th की जो NCERT जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि न्यूज़पेपर के साथ साथ हम NCERT पढ़े, NCERT में 6 to 10th की साइंस की NCERT भी आप डेफिनेटली पढ़िएगा, और 12th की बायोलॉजी के लास्ट के 5 चैप्टर्स, दोज आर वेरी गुड, एंड वन बायोकेमिस्ट्री चैप्टर एज वेल. सो जनरल साइंस का अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, दिस इज द स्टैटिक पोर्शन दैट यू कैन डेफिनेटली कवर. ठीक है, सो आई होप आई एम नॉट लीविंग एनी अदर सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ. These are the subjects for which the prelims is almost covered. So these are my sources for prelims. Now coming to strategy for prelims. पहली बात, ये जो स्टैटिक बुक कही है इनको बहुत अच्छे से कर लेना, इस पे तुम्हारा 70% of the time जाना चाहिए. I have personally followed this strategy and cleared prelims every time. And then remaining 30% should be your current affairs. ठीक है, current affairs में भी now there are multiple sources out there in the market. It's a very personal thing which source you would want to go for, but just use one source. It could be any source, only one source, and trust that. क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि इस साल की जितनी भी न्यूज हुई है मैं उनको सारी कवर कर लूं करंट अफेयर्स के और वो मेरे माइंड में भी रह जाए, दैट्स एन इम्पॉसिबल टास्क. वो चीज कभी नहीं हो पाएगी. there will always be something left, there will always be something जो शायद आपको नहीं पता होगा. तो उसके लिए एक कन्फाइंड सा सोर्स रखो, सिर्फ उसी पे ही ट्रस्ट करो. उसके आगे अगर पूछता है कुछ तो कोई बात नहीं, you don't have to score 200 out of 200 in prelims, right? So एक ही सोर्स रखो करंट अफेयर्स का, ज्यादा नहीं उसके पीछे भागना, बिकॉज you'll notice in PYQs करंट अफेयर्स से डायरेक्ट सोर्सेस से क्वेश्चन थोड़े कम ही आते. करंट अफेयर्स को मोस्टली स्टैटिक से रिलेट करके ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आई यूज PT 365 ओनली फॉर माय करंट अफेयर्स, नथिंग एल्स. एंड थर्डली, एक और चीज मैंने प्रीलिम्स में पिछले 2-3 साल से नोटिस करी है, प्लेसेस इन न्यूज. जो भी प्लेसेस इन न्यूज चल रही हो ना, एटलस को ना डेफिनेटली अच्छे से कर लेना, स्पेशली फॉर द प्लेसेस जो न्यूज में रही है. जैसे फॉर दिस ईयर ईरान हैज बीन इन न्यूज, USA has also been news, South America region has been in news. So these areas which are in news, इनमें क्या क्या स्ट्रेट्स है, कौन कौन से गल्फ है, एंड द कंट्रीज की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है, कैपिटल क्या है, ये चीजें थोड़ा अपने दिमाग में रखना. लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस नेटो वाज इन न्यूज अ लॉट. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने नेटो का सारी कंट्रीज का थोड़ा थोड़ा अपना वो रखा था, और क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स से फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द नेटो. तो इस टाइप से थोड़ा न्यूज से आता है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो मतलब जो आप PT 365 कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज उधर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लो हैंगिंग फ्रूट है. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग द कट ऑफ इफ योर स्टैटिक इज very much strong, plus the places in news and the international relation that is in PT 365 would really help you a lot in the prelim stage. और कंट्री जैसे ईरान है, इट्स इन न्यूज, तो उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेना, रिवर्स देख लेना. तो ये चीजें थोड़ा सा एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके खुद भी सोचना कि क्या न्यूज में चल रहा है, और जनरली यू विल सी द ट्रेंड, उधर से पूछे जाते हैं. So for prelims, static part is covered, current affairs is covered, places in news, mapping part is covered. Mapping में ऐसा नहीं कि भाई पूरी दुनिया का सब कुछ जानना है हमें. You have to just focus upon those areas which are in news and try to make ensure कि वो उस region की news आपको, उस region का जो भी places in news है वो आपको दिमाग में बिल्कुल clearly बैठा हो.
I hope that's clear. And next, so this is the part of preparation कि यहाँ से prepare होगा. Now comes the part of practice. In prelims, practice is very essential because especially like I said, 100 questions would be asked in GS and you won't be knowing answers to all the 100 of the questions. You आपको 35 ही मैक्सिमम डेफिनेटली आप 100% श्योर होएंगे. उसके आगे यू हैव टू यूज योर एनालिसिस, योर एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, एंड हाउ दैट रिमेनिंग गैप इज फिल्ड आफ्टर 35 क्वेश्चन इज डन बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिसिंग. सो प्रैक्टिसिंग कैसे करनी है? पहली बात मॉक्स देने हैं. कोचिंग के मॉक्स होते हैं. गिव एज मच मॉक्स एज यू कैन. पहले सब्जेक्ट वाइज दे लो कि सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, पॉलिटी का खत्म हुआ तो पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज दे दिए 2-3, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, पता भी चलता है दीज आर द टॉपिक्स विच आर माई स्ट्रेंथ एंड दीज आर द टॉपिक्स विच आर माई वीकनेस. इस तरीके से हम सेग्रीगेट कर पाते हैं. तो जब हम रिविजन कर रहे होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ रिविजन करते हुए कि इस एरिया से मेरे मॉक्स में ना आंसर ठीक नहीं हो रहे थे, तो आई हैव टू रीड दिस केयरफुली. तो इस तरीके से अपने मॉक्स को इस तरीके से हमें अपने मॉक्स को देखना है. एंड ऑल्सो मॉक्स में ठीक है मॉक्स वगैरह देते हैं, मैंने भी खूब दिए हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि हर मॉक में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. देयर वर सम मॉक्स जिसमें मेरे कम मार्क्स भी आते थे, कुछ थे जिसमें बहुत अच्छे भी आते थे, कुछ में एवरेज. इट यूज्ड टू बी अ मिक्स्ड बैच. सो स्पेशली इट्स 12th of April today. If someone among you is preparing for prelims which is on in the month of May this year, then अभी आपके मॉक्स में कुछ मॉक्स में ऐसे हो रहा होगा कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस भी लूज होता है. डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट. अगर किसी मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. टेक इट एज अ मोटिवेशन कि हाँ इस टॉपिक में अपना एनालाइज करो उस मॉक को कि किस टॉपिक में एक्चुअली गलतियां हुई है. वंस यू डू दैट, उसके बाद उन टॉपिक्स को गो बैक टू देम, बट डोंट फील डिसहार्टन विद द मॉक्स. क्योंकि कुछ मॉक्स बहुत मुश्किल भी होते हैं कि किसी के भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते उसमें, तो उनसे डिसहार्टन नहीं होना. सीखना है हर एक मॉक से हमें. उसके मार्क्स को हमेशा एक पिंच ऑफ, अच्छे भी आ रहे हैं तो भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना, बुरे भी आ रहे हैं तो जितना डिसहार्टन भी फील नहीं करना. तो इस तरीके से हमें अपने मॉक्स को करना है. और एक मॉक्स का एक और यूटिलिटी बहुत अच्छा है. फर्स्ट इज दिस, वी आइडेंटिफाई आवर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. एंड द सेकंड एस्पेक्ट इन विच मॉक हेल्प्स इज कि once you start attempting mocks, so you will realize whether you are better with there are two kind of people. One is that category of people जो कम अटेम्प्ट करते हैं बट दे हैव सच एन अमेजिंग एक्यूरेसी कि अगर वो 75 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 75 में से वो 70 तो डेफिनेटली ठीक कर रहे होंगे. एंड द अदर कैटेगरी ऑफ पीपल इज हु आर नॉट दैट मच एक्यूरेट. दे अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन दे आर एबल टू स्कोर गुड. ठीक है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर एंड दैट इज डन बाय प्रैक्टिसिंग द मॉक्स. अब मॉक्स में क्या होता है, मॉक्स में जब हम अपीयर करते हैं हम देखते हैं कि यार जब मैं इतने अटेम्प्ट कर रही हूँ, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं 80 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं बन रहा, बट व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग मोर लाइक 90s देन माय स्कोर इज इंक्रीजिंग. तो ये ना अगर आप 30 to 40 मॉक्स दोगे आपको पता चल जाएगा कि in which category you actually lie in. I was in the category who was कि 88 to 90 तो अटेम्प्ट करने ही है and then I'll be comfortably scoring 100 plus, and that used to be the case with me. So in each and every prelims I have attempted from around 88 to 92 questions. That has been my average and it has worked very well for me always. And that this identification is done by preparing for mocks. And there's a question 30 to 40 full length mocks. No. 30 to 40 overall mocks. ठीक है. उसमें हम सब्जेक्ट भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, फुल लेंथ भी इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज हमें रिवीजन भी करनी है. इट्स नॉट कि हमें मॉक्स ही करने हैं, हमें रिवीजन भी करनी है. ये मैं एड्रेस अभी कर रही हूँ क्योंकि 30 to 40 किसी को बहुत ओवरवेलमिंग ना लगे. 30 to 40 में आप सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस 1 वीक में आपने अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली तो टॉपिक वाइज आप देख लो कि अब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करे तो इंडियन ज्योग्राफी का एक मॉक दे दिया ताकि ये भी पता चल जाए कि जो मैंने पढ़ा वो एक्चुअली माइंड में गया है या नहीं. और अगर नहीं गया तो वापस में I can just go to those topics while analyzing the mocks. In mocks, so one part I've discussed why we have to give mocks, how much mocks we have to give, and the third part which is very important in mocks is पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हमारा अच्छा स्कोर बन रहा है. दूसरा पार्ट एक और हमें आइडेंटिफाई करना है मॉक देते हुए. मॉक्स में क्या करना है, क्या होता है कि कुछ मॉक्स में ना कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं. तो मैंने ना एक सेपरेट रजिस्टर बना रखा था जिसमें अगर मुझे कोई सा भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज मैंने ना पढ़ नहीं रखी है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कुड कम, सो आई यूज्ड टू नोट डाउन दैट स्टफ फ्रॉम माय मॉक्स इन माय रजिस्टर. ठीक है.
तो दैट आई यूज्ड टू डू, आई मेंटेन वन रजिस्टर, और मैंने अपना जब मैं प्रीलिम्स का डी डे से 10 डेज पहले मैं उस रजिस्टर से गो थ्रू एक बार ही होती थी टू जस्ट रिवाइज एंड कि दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन न्यूज एंड वर आस्क्ड रिपीटेडली इन मॉक्स एज वेल, तो वो रिवाइज भी हो जाता था, ठीक है. And with regards to which coaching mocks I gave, you can give any. I gave of vision also, next IF also, मतलब जो भी मुझे मिलता था ना अवेलेबल, मैं उनके दे दिया करती थी. बट आई पर्टिकुलरली लाइक, एंड फॉरम IAS एज वेल, आई पर्टिकुलरली लाइक मॉक्स ऑफ नेक्स्ट IAS एज वेल, नेक्स्ट IAS अनुभव, FLTs, and SFG of forum IAS. Those were very nice, very well curated, and simulators as well. Vision के भी मैंने attempt करे, subject wise mocks I really liked of vision and forum, ठीक है. तो इस तरीके से ये 3 इंस्टीट्यूट के मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट करे हैं मॉक्स. सो दिस वाज माय जर्नी विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स. एंड द नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया स्टैटिक कहाँ से करना है, करंट कहाँ से करना है, मॉक्स का कैसे यूटिलाइज करना. नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, PYQs. जो भी PYQs लास्ट 10 ईयर्स के हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं. उसको इस तरीके से नहीं करना कि रिपीट होगा. उसको क्या करना है कि मैं रोज क्या क्या करती थी, स्पेशली इन द लास्ट 1.5 months बिफोर द प्रीलिम्स, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट PYQs ऑन अ डेली बेसिस. बिफोर स्लीपिंग आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 25 to 30 क्वेश्चंस ऑफ PYQs. तो उससे ना क्या होता था कि मुझे टॉपिक्स भी पता चलते थे कि हाँ यूपीएससी, आई आइडेंटिफाइड दोस टॉपिक्स की यूपीएससी ना प्रीलिम्स में इस टॉपिक से बहुत सवाल पूछता है. जैसे प्लेसेस इन न्यूज इज समथिंग जो मैंने PYQs देख के रियलाइज किया कि प्लेसेस इन न्यूज से यूपीएससी जनरली सवाल पूछता है, IR में डेफिनेटली पूछता है. ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेंबर्स है वो भी यूपीएससी पूछता है. तो इस टाइप के आइडेंटिफिकेशन हम PYQs करके हमें पता चल जाती है. और PYQs की एक और चीज है कि आई सॉ इट एज अ मेंटल एक्सरसाइज कि मैं यूपीएससी के द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर रही हूँ और अपना दिमाग एलिमिनेशन टेक्निक या फिर अपनी एनालिसिस उन ऑप्शंस को टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स वो किस तरीके से यूज करी, वो मेरी काफी अच्छी मेंटल एक्सरसाइज PYQ देके हो जाती है. एंड यू नो ब्रेन वर्क्स लाइक दैट ओनली. एंड देन ऑन द डी डे यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने इस तरीके से सवाल पूछा हुआ है एंड तुमने 15-20 दिन PYQs की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो सबकॉन्शियसली यू विल बी एबल टू यूज योर माइंड इन दैट डायरेक्शन ओनली, ठीक है. सो PYQs डेफिनेटली करने हैं, बहुत हेल्प करता है. PYQs इज समथिंग दैट हैज मेड एंश्योर कि मेरे हर बारी 100+ रहे प्रीलिम्स में. काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये. तो दिस इज विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स दैट हैज टू बी फॉलोड. Current of static sources, current affairs from one source, mocks have to be given, PYQs have to be religiously followed. These are the 4 steps in prelims. If you do it in a very disciplined manner, then you'll be very good to sail through in GS. अब ये तो हमने बात करी थी GS की. Now there's another part of prelims, CSAT, which acts as a major roadblocker, major block for many of the candidates who are appearing. So for CSAT, what you can do is, so what I personally did, CSAT में मैंने PYQ उठाया. पहले तो मैंने ना प्रिपरेशन CSAT की करने से पहले PYQ उठाया. मैंने पिछले साल का अटेम्प्ट किया 2 hours का स्टॉप वॉच पे लगा के, एंड आई सॉ हाउ मच आई एम स्कोरिंग, ठीक है. एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है इतना स्कोर बन रहा है तो क्या पोटेंशियल है, क्या मुझे आगे करना है. तो ये चीज अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा PYQ देके. So I used to score 100+ in the PYQs. So मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था CSAT पे and I was able to clear it. But what strategy that would be followed by the candidates who are struggling with CSAT is कि आप जब PYQ solve कर रहे हो ना तो एक रजिस्टर लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा and just write the type of questions that are being asked. कि firstly syllogism से question आते हैं या फिर मतलब इस टाइप से एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है. तो इस टाइप की once you have made that list, then you approach it topic wise. There are certain so on YouTube there is one channel of only IAS CSAT and उसमें टॉपिक वाइज कर रखे हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई दोस टॉपिक्स और आप उनकी वीडियोस देख सकते हो लाइक हाफ ऑफ आवर की, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो. सब में मत करना बिकॉज ऑफकोर्स सीसैट में सब कुछ टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ भी होगी तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा अगर आप उनकी वीडियोस देख रहे हो. सिर्फ उन टॉपिक्स की करना जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी वीकनेस है. जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इशू आ रहे हैं, सिलोगिज्म का कोई इशू आ रहा है, तो उसकी आप वीडियो देख के अपने उसको प्रिपेयर इस तरीके से कीजिएगा. डोंट इग्नोर सीसैट इफ यू आर स्कोरिंग less than 80 marks, 75 marks in the PYQ, because PYQ तो हम घर में बहुत कंफर्टेबल उसमें कर रहे होते हैं. वहां पे जब एक्चुअली एग्जाम दे होते हैं स्ट्रेस ज्यादा होता है. तो इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 75 और 80,
देन डेफिनेटली फोकस अपॉन सीसैट, और सीसैट में आप मॉक्स दीजिएगा। वीडियो जो मैंने आपको चैनल बताया ओनली आईएएस का, जिसमें सीसैट की कुछ टॉपिक वाइज वीडियोस आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जस्ट डू इट, ठीक है। But don't ignore CSAT. Don't ignore it at all. Don't do that mistake, because I've seen so many people who are scoring so well in GS but did not focus upon CSAT or got overconfident and could not clear it. So you don't want that. There's a 66 minimum marks that you know you have to get and you have to work for it. Okay. So this is about prelims. I hope nobody has any doubts in the prelims. I'll take the doubts in the end. Don't worry. I'll definitely read all the doubts. Now coming to the next stage of the examination, mains. Now prelims is just a qualifying stage. I told the source for geography. It's PMFIS. So there's a doubt that has come. Okay. Now coming to mains, we'll focus solely on mains now. Prelims is just a qualifying round. That is which determines your eligibility for preparing mains. Now mains is that part which determine whether you will get selected or not. So मेंस की जो तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से करनी है. Like you must not leave any stone unturned for the preparation of mains. So for the strategy of mains, अगर मैं overall आपको मैं पहले GS का डिस्कस करूंगी and then optional का. My optional is law, by the way. I am a lawyer by profession, so law was my optional. So coming to the GS part of the mains. So if we talk about, there are 4 papers of GS and 1 of essay. ठीक है, this is the overall structure of how the mains examination is conducted. So with regards to firstly essay, we can discuss. एसए का आप प्रीलिम से पहले उतना प्रिपरेशन अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना यूपीएससी की, तो आपको ना और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, आपको ये जनरल नॉलेज चीज़ों की हो जाती है, तो आपको कंटेंट साथ साथ प्रिपेयर हो ही रहा होता है एसए के लिए। जो जो आसपास हमारे हैपनिंग्स हो रही है वो हम एसेज में डालते हैं, कुछ भी हमें कुछ जीएस से भी कोई चीज़ है तो ऐसे में वैल्यू एडिशन उसका यूज होता है, तो यू कैन इग्नोर दैट पार्ट, ठीक है, टिल प्रीलिम्स यू कैन प्रिपेयर. देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस टू प्रिपेयर फॉर एसे. नाउ द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एसे. So talking about that, in essay what you can do is, there's a video by Smriti Shah ma'am on YouTube channel. She's a professor, she's a teacher at Vision IAS. So in her 1.5 to 2 hour lecture, she has told the crux of how to prepare for essay. You have to write 1200 words in the essay. Starting में ऐसे लगता है अरे 12 पेजेस कैसे लिखेंगे एक टॉपिक पे, बट वंस यू सी दैट वीडियो, you'll analyze, you'll understand how to break the topic into various layers and create some dimensions in order to ensure that you're scoring good in the essay and you're able to complete those 1200 words. So that video would definitely help you in breaking down that aspect, okay? So that video can be seen, and then after prelims every weekend you have to write one essay and get it checked, and make sure to make your essay as interesting as possible. So what I did was, in essay part, I decided to be as creative as possible. मैंने उसमें कुछ अपनी लिमिट्स रखी ही नहीं हुई थी. I had made up my mind that I would definitely, मैंने एक अपने नोट्स बना रखे थे ऐसे के, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, लंच करते हुए या ब्रेकफास्ट करते हुए, मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख लिया करती थी नेटफ्लिक्स पे, कोई सी भी नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्री. जैसे देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ हिस्ट्री 101 ऑन नेटफ्लिक्स, उसमें काफी अच्छे से कुछ चीजों को, न्यूक्लियर पार्ट और चाइना, इंडिया, इस सब चीज़ों को कवर अप कर रखा है. तो इस टाइप की मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करती थी और उनसे मैं अपने थोड़ा सा कुछ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल गया तो मैं लिख लिया करती थी. बाकी अब तो दिस अटेम्प्ट आई सॉ दैट विजन आईएएस एज वेल एज नेक्स्ट आईएएस केम विद देयर ओन बुकलेट ऑफ वैल्यू एडिशन, तो वो मैं अपने नोट्स में लिखा करती थी कि if there's any historical good event that had happened, कुछ अच्छी मुझे मोटिवेटिंग पार्ट मिल गया कि न्यूटन की मोटिवेटिंग कहानी, या फिर किसी स्पेस में किसने रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करा, इस टाइप की कोई कहानी मिल गई, मैं वो लिख लिया करती थी अपने उसमें, और वो काफ़ी हेल्प भी करता था. एक्चुअली वो एक फॉर्डर एक्ट करता था जो ऐसे में मैं बाद में यूज़ किया करती थी, ठीक है. तो दैट थिंग कैन बी डन. और एक कोटेशंस की भी अलग मैंने एक डायरी बना रखी थी. दीज आर द कोटेशंस दैट कुड बी यूज. कुछ पोएम्स, कुछ मुझे अच्छी पोएम मिल गई, तो इस तरीके से मैंने बना रखा था. और आई स्पेसिफिकली रेफर टू टॉपर कॉपी ऑफ विक्रम ग्रेवाल. ही गॉट 164 इन essay.
सो आई रेफर टू हिज टॉपर कॉपी, और उधर से ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि एसे कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन द एसे. सो दैट इज इट अबाउट द एसे. नाउ नेक्स्टली कमिंग टू GS1 पार्ट. ठीक है, तो GS1 में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, सोर्सेज हमारे वही रहेंगे. हिस्ट्री में जो मैंने पूनम दलाल दहिया स्पेक्ट्रम बताई है वही रहेंगे, और ज्योग्राफी में भी PMF जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कवर अप काफी अच्छे से होता है. वर्ल्ड हिस्ट्री में यू कैन रेफर टू सम शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी कोचिंग. आई रेफर टू देयर प्रहार ऑफ ओनली IAS, उससे तुम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर अप कर सकते हो. PYQ थोड़ा देख सकते हो. तो ये सब चीजें GS1 में कवर हो सकती है. बट एक चीज आई वुड डेफिनेटली से, जो भी टॉपिक मेंस में आप कर रहे हैं प्रिपेयर, उसमें मेक वन थिंग इंश्योर कि आपके हर हर एक टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर्ड हो. ठीक है, हर एक टॉपिक के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. वो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग ड्यूरिंग योर मेंस की जो भी आपको 3 मंथ्स का गैप होता है. तो ये आप इफ यू हैव 1 ईयर टाइमलाइन विद यू, देन डेफिनेटली जब आप GS स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने नोट्स मेंस के बनाएं, और PYQs की एक बुक ले लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो कि PYQ में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो उसी लाइन पे आप अपने GS के नोट्स बनाइएगा. GS1 में 2-3 स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा. GS1 में इफ यू आर राइटिंग हिस्ट्री आंसर्स, डेफिनेटली रेफर टू द पीरियड, बी मोर स्पेसिफिक अबाउट द किंग्स, और जो भी मॉन्यूमेंट का आप नाम लिख रहे हो स्पेसिफिक रहना है उसमें. ज्योग्राफी में डायग्राम्स काफी बनाने हैं. तो इन चीजों का GS1 में डेफिनेटली अक्रॉस देम यू हैव टू यूज. फॉर द सोसाइटी आई रेफर टू स्मृति मैम्स क्लासेस. आई वाज अ फाउंडेशन स्टूडेंट ऑफ विजन IAS. तो स्मृति मैम की क्लासेस काफी मेरे लिए हेल्पफुल रही थी सोसाइटी में, तो उसके नोट्स ने मुझे थ्रू आउट हेल्प करा है. ठीक है, coming to GS2 में my option was law. So in polity I was very comfortable with the case law. So what you have to do is, in polity aspect of GS2, mention as much case laws articles as you can. उसको value addition अपना रखना है. उसमें भी हर एक टॉपिक के अपने नोट्स रेडी रखने हैं. उसमें विजन IAS का जैसा वैल्यू एडिशन मटेरियल वो काफी अच्छा है GS2 की प्रिपरेशन के लिए, अक्रॉस गवर्नेंस, पॉलिटी एंड जो हमारा सोशल इश्यूज है वो काफी अच्छा है. और दिस आतिश माथुर सर के भी कुछ एक बहुत शॉर्ट नोट्स है मैग्ना कार्टा. ही हैज अपलोडेड ऑन हिज टेलीग्राम चैनल पॉलिटी में. उसमें आपको एक पेज में हर टॉपिक का मिल जाएगा, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है. आपके नोट्स में आप वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू GS2, तो इसमें आपको GS2 में काफी स्कोप रहता है स्कोर करने का. तो हर टॉपिक के बनाना नोट, सेपरेशन ऑफ पार्ट टॉपिक है उसके नोट्स बनाना, RPA के बनाना. तो अपने नोट्स आपको ऐसे उसको पूरा प्रिपेयर रखना है. ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू GS3 में हमारा इकोनॉमी में आई रेफर टू अमित मंगतानी सर नोट्स. अमित मंगतानी सर के जो नोट्स है वो काफी मेंस ओरिएंटेड है, काफी ज्यादा मेंस के जो भी हमारे टॉपिक वाइज है ना, तो काफी अच्छे से कवर कर रखा है. तो GS3 में भी ना आपके अपने नोट्स हर एक टॉपिक के 2 पेजेस होने चाहिए. और GS3 में यूज एज मच डेटा एज पॉसिबल. कमिटी नेम्स हैव टू बी यूज्ड इन GS2 एज वेल. you must make ensure कि ये चीजें आप कर रहे हैं अपने GS3 के पेपर में. सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एस्पिरेंट्स often ignore, and that should not be done. It's a very low hanging fruit, and there are some very predictable questions that come in science and tech as well as security. So make ensure that you are not losing out your marks in these 2 subjects. So GS3 has to be prepared in that way. Data committee, you make it as objective as possible. ठीक है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में थ्रू आउट इट गोज फॉर ऑल द GS पेपर्स. बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल. इंट्रोडक्शन में कोई कमिटी या डेटा आ सकता है वो डालिए. कंक्लूजन में भी कुछ फॉरवर्ड लुकिंग कोई सरकार की स्कीम हो वो आप डालिए. इसमें आप टॉपर कॉपीज को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं. आदित्य श्रीवास्तव सर थे लास्ट ईयर, ऑल ईयर रैंक 1. उनके So I would like to clarify in the doubts. I'm getting doubts. I'll definitely take all of your doubts, but in the end, because I want to cover up this aspect, because I don't want to get diverted from the topic as of now. I'll take all the doubts. Don't worry. Once this is completed, okay? And mains. So yes, coming back to it, in mains, the topics and notes should be prepared in a very holistic manner. Topper copy can be referred to see how to answer. Topper copies are available on Vision IAS, Forum IAS website, so आप उनको refer कर सकते हैं. ठीक है? This is about mains. Also,
इसमें आंसर राइटिंग डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिस करनी है मेंस में। ठीक है, हमने अपने नोट्स बना लिए, टॉपर कॉपीज देख लिए, बट if you're not writing answers yourself, all your knowledge, you won't be able to reproduce your knowledge in a good way. तो आंसर राइटिंग इसमें आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ, अगर आपका 1 साल है आपके पास अवेलेबल, तो आप शॉर्ट शॉर्ट मिनी टेस्ट दे सकते हैं, 1 आवर के, 1.5 आवर के, दैट इज प्रोवाइडेड बाय AWFG बाय फोरम IAS। तो इसमें आंसर राइटिंग आप डेफिनेटली कीजिएगा। जितनी आप आंसर राइटिंग करोगे, एनालाइज करोगे, आपको उतना ही ज्यादा डिविडेंड्स मिलेगा। एंड फॉर द पीपल, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो भी आप मॉक्स दे रहे होते हैं मेंस के, उसमें एक चीज का ध्यान रखना, उन मॉक्स की आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बात तो टाइमली होने चाहिए। 3 आवर का पेपर है, यू वोंट बी गेटिंग 1 मिनट मोर देन दैट। तो मेक एंश्योर जो 10 मार्कर्स वाले क्वेश्चन है उनको 7 मिनट्स में करिए, और जो अपने 15 मार्कर्स क्वेश्चन है उनको 11 मिनट्स में। उस टाइम पे आपको एडहियर डेफिनेटली करना है, एंड दैट वुड हेल्प यू इफ यू आर अपीयरिंग इन मॉक्स इन अ वेरी डिलीजेंट मैनर। ठीक है, और मॉक्स में भी जब आप मॉक्स अपीयर करते हैं, उसके बाद ये नहीं कि योर वर्क इज डन, कि आपने लिखे आंसर्स एंड योर वर्क इज डन, दैट इज नॉट द केस। यू शुड ओपन द मॉक आंसर्स गिवन बाय द कोचिंग, you'll get some very good value addition points from there, add that in your own notes। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ गुड पॉइंट दैट आई कुड हैव मेंशन्ड हियर, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उनको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना है। और उसमें जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नाउ एंड देन व्हाट दे डू इज कि वो जो टॉपर्स की, जैसे आपने कोई टेस्ट दिया तो जिसमें हाईएस्ट, जिनका उनमें हाई स्कोर आया, उनकी कॉपीज को अपलोड करते हैं। आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आई कुड ऐड दिस डायग्राम, आई कुड ऐड दिस पॉइंट, और दिस इज द बेटर वे ऑफ कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, सो दैट कुड बी डन। तो ये चीजें एनालाइज करना इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपेयरिंग इन मॉक्स। आई नो इट सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग एट दिस पॉइंट, बट ट्रस्ट मी, once you start preparing, once you get in the flow, you'll definitely be able to sail through in a very good manner। ठीक है, now coming next to, so in mains, now next coming to the optional, my optional was law. So I have so in law optional it's a quite a bulky subject, I do understand। उसमें ही मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था। लॉ में जब भी हम कोई आंसर लिख रहे होते हैं, केस में हम सेक्शन नंबर क्या लिख रहे हैं, यूरिस्ट के नाम लिख दो, केस लॉज, ये 3 पार्ट हर लॉ ऑप्शनल के आंसर का पार्ट होना चाहिए। और उसमें भी इट गोज विदाउट सेइंग, in law optional also, of each and every topic you should have your own notes, because the syllabus is bulky, and if you don't have your own notes तो आप को रिवीजन में बहुत इशू आएगा। तो इसलिए उसके अपने नोट्स बनाइएगा, और लाइव लॉ को भी आप डेफिनेटली फॉलो करते रहिए, करिएगा लॉ ऑप्शनल में, बिकॉज जो हम रिसेंट केस लॉस उसमें ऐड करते हैं तो उसमें काफी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं रिसेंटली इन दिस केस आल्सो, रिसेंटली इन दिस केस दिस हैपेंड, तो एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन छोड़ता है कि यस दैट एस्पिरेंट इज नॉट, डज नॉट हैव अ फॉसिलाइज्ड इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी वेल अपडेटेड। ठीक है, so that has to be done। Now this is about the mains part, your notes should be ready, you have to regularly do answer writing, refer to the topper copies to understand how the answers have to be written। और उसमें ये कोशिश करना है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो 10 पॉइंट आप लिखो, पॉइंट वाइज रखना मीन्स में आंसर, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, उसमें आप पॉइंट्स का यूज कीजिएगा। ठीक है, now coming to the stage of interview, if you are done with, if you clear means, then how to tackle the interview stage। So in interview we fill detailed application form। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, उसमें पर्टिकुलर अपनी जो हॉबीज है वो आप जो लिख रहे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप उसको वहां पे रिप्रोड्यूस, ताकि आप उसमें वहां पे इंटरव्यूअर को दिखा सके कि यस ये मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, आई नो अबाउट व्हाट आई हैव डन in this specific hobby and what is actually happening। ठीक है, तो डैफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें भी बी योरसेल्फ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना है, जो आजकल क्लीशे इंटरव्यूज में कहते हैं कि मॉक इंटरव्यूज में कि यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, डू दिस डू दैट, बी योर ओरिजिनल सेल्फ। द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू इज ऑल्सो ह्यूमन, he also has some flaws on habits and quirks, so he would understand if you have your own। So be as original as possible, don't be someone you are not, because they are very learned people, they would understand, they would see behind the facade if you're throwing to them। So that has to be done, and don't bluff there, be show that you're an person of integrity, a person of confidence, a person who could handle the challenges of civil servant faces in the future। तो अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करना, जो आपका ऑप्शनल है, मेरा लॉ था, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, और
बिल्कुल, बिल्कुल चिल होके जाना है इंटरव्यू में। इफ यू गेट थ्रू द मेंस एंड गेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल चिल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड। इंटरव्यू इज़ नॉट योर नॉलेज टेस्ट, इंटरव्यू इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, whether you how good you are at thinking on your feet, how good you are able to manage the stressful situations. This is what interview are for. They're not texting your what and whys. ठीक है, they are testing someone something else. If I talk about my own interview experience, my board was of Shri Sanjay Verma sir. I scored 190. So Sanjay Verma sir's board, they did not. So I prepared for DAF. I prepared my optional, but on my D day, I was not asked anything from my DAF or from my optional. That does not happen in every case. That happens in some of the case. So from me, the questions were asked were very random. But I had a very cool head in mind. मैं इंटरव्यू से पहले सोच के गई थी कि कीर्ति डोंट हैव एनी प्री कंसीव नोशन कि तुमसे इधर से ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो कुछ भी पूछते हैं, तुम्हें बस उधर कॉन्फिडेंट रह के आंसर देना, अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज में दिखाना है, उधर प्रिटेंड नहीं करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। जो आपका नेचुरल सेल्फ है, नेचुरल बातें होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो मुझसे जैसे बहुत एथिकल सिचुएशंस पूछी गई थी, जिसके बारे में यू कैन नेवर प्रिपेयर फॉर एथिकल सिचुएशंस। इट्स योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन योर बेसिक analogy and your capability to think on your feet that helps you in answering those questions in the interview, and that is done by regular practicing also। जो हम मॉक्स वगैरह देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो हमें रियलाइज होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चंस एकदम से सिचुएशनल बेस्ड है तो उनको किस तरीके से बोला, वो हम चीजें हो जाती है मैनेज। ठीक है, बट डी डे पे हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। दिमाग में सारे प्री कंसीव नोशन और बायसेस छोड़ के आने। ठीक है, so my interview experience was very good. It was a very amicable experience. I had a very nice 35 minutes with Mr. Sanjay Verma sir's board. So I was my natural self. I was confident. I did not have any preconceived notion कि मेरे से lawyer डांस से सवाल ही पूछे जाएंगे, और मैं इसी mindset के साथ गई थी, कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी question पूछेंगे अपनी best of knowledge से answer करूंगी, and if I'm not able to answer then no, just say no, as simple as that, don't bluff there। ठीक है, so that was my interview experience अपना। बट अपनी तरफ से जो मिनिमम होता है, डैफ और अपना ऑप्शनल प्रिपेयर रखना है, करंट अफेयर जो उस टाइम पे चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर अननोन क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, दैट इज डन वेरी इजीली because after mains you will get ample amount of time to prepare for interview via mocks, and you will understand कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, व्हाट आई कैन डू। यू कैन सिट विद योर फैमिली, दे कुड आस्क यू रैंडम क्वेश्चन, उन्हें कह दो कि चलो मुझसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लो, फैमिली में पेरेंट्स या भाई तुम्हारे सिबलिंग्स कोई हो, तो उन वो चीजें जब आप करोगे तो खुद हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल काम सेल बन के जाना इंटरव्यू में। सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। मेंस में टॉपर कॉपीज डेफिनेटली रेफर कीजिएगा टू नो हाउ टू आंसर एंड व्हाट टू आंसर। सोर्सेज एक ही रखने हैं और अपने नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूपीएससी, स्पेशली फॉर द मेन स्टेज। अगर आपके नोट्स बने होंगे, आप अच्छे से उधर रिप्रोड्यूस कर पाओगे और वो चीजें हो जाएगी। अब नोट्स ठीक है हम कहते हैं, पर बनाए कैसे? तो इसमें भी ना देखो, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होता है कि यार हम पूरी की पूरी बुक लिखने लग जाते हैं। तो ठीक है, एक बार ही गलती होगी। नेक्स्ट टाइम व्हाट यू डू इज कि आप सीखो, आप थोड़ा ना, जैसे टेलीग्राम पे टॉपर पेजेस आर आल्सो देयर ऑन टेलीग्राम, तो उन्होंने अपने सैंपल नोट्स ना अपलोड कर रखे होंगे, तो यू कैन रेफर टू देम एंड सी हाउ दे हैव मेड देयर नोट्स। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैंने ठीक है मैं रेफर करती थी प्रॉपर नोट्स, बट दोस डिड नॉट यूज्ड टू बी माय सोर्स। आई मेड माय ओन नोट्स। यू शुड मेक योर ओन नोट्स। टॉपर के जो नोट्स है वो दे आर जस्ट फॉर द रेफरेंस, एंड आई थिंक note making is something that is very personalized also. Everyone has their own style of writing, so you choose your own style and write your notes in your own style। ठीक है, तो नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, मैंने ऐसे किया था, कोई सा भी टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी, मैंने फूड प्रोसेसिंग का एक देयर इज अ हेडिंग इन द जीएस3 सिलेबस, तो फूड प्रोसेसिंग मैंने हेडिंग डाली। मैंने पहले पीवाईक्यू उठाए, पीवाईक्यू में ना लिस्ट बना ली अपने नोट्स में कि these questions have been asked from food processing। now I know how to make my notes। I don't need to go into XYZ of food processing। You have to be focused on the PYQs। You should know advantages of food processing, what is India's current status, what is the future potential, what are its advantages, what are its bottlenecks, and the way ahead। बस ये अपने नोट्स में लिखने हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स,
जो भी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इस टाइप से अपने नोट्स को उसी पैटर्न पे रखना है। पहले नोट्स की जो भी टॉपिक है पीवाईक्यू लिख लो कि दीज आर द पीवाईक्यूज दैट हैव बीन आंसर्ड, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं और कोई सा भी टॉपिक हो 2 to 3 पेजेस में उसको खत्म कर देना, ठीक है, छोटे A4 साइज शीट लेके। और कोशिश करना है कि उसके बाद कुछ स्पेस आप छोड़ो, लाइक हाफ पेज और 1 पेज और समथिंग डेफिनेटली आप छोड़ो, बिकॉज कुछ भी करंट अफेयर या वैल्यू एडिशन उसमें हो रहा है तो आप ताकि वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली कीजिएगा। नाउ सी आई डिड नॉट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो अगर मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँ तो देयर इज ऑफन ए क्वेश्चन ऑफ प्लान बी दैट कम्स कि सी आई एम ऑल्सो वेरी प्रूडेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर यूपीएससी। तो see what happened was in 2020 I completed my BA from Hindu College University of Delhi, ठीक है। After that I had made up my mind back in 2019 to prepare for civil services, but I also wanted a good plan B also. So what I did was I got enrolled in LLB at Delhi University Campus Law Center. From 2020 to 23 I pursued LLB from CLC Delhi University. सो मैंने अपने अटेम्प्ट्स एलएलबी के साथ साथ देना ही स्टार्ट कर दिए थे एंड आई वाज डूइंग एलएलबी। तो तभी मैंने अपना ऑप्शन भी लॉ चूज किया था ताकि मेरी ग्रेजुएशन भी हो जाए एलएलबी में और मैं अपीयर भी कर पाऊँ यूपीएससी में। तो मैंने सोच रखा था दिस इज माय प्रोफेशनल बैकअप दैट आई वुड बी हैविंग। So if you're a person who is fear of uncertainty, who I think would be able to prepare better if he or she has that plan B or some cushion behind them, then definitely you could use a similar strategy for yourself. You could join some job also. Now there are some private jobs also out there of mentorship and everything. So even that could be done if you want to feel more financially independent. सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज 2023 में मैंने एलएलबी करी थी तो मैं और एग्जाम्स भी दिया करती थी। मैं सिर्फ यूपीएससी का ही नहीं दे रही थी, मैं अदर एग्जामिनेशन लाइक मैं स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा है मैं वो डेफिनेटली दिया करती थी क्योंकि उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक्सपोजर भी मिलता है। तो वो चीज़ें हमेशा अपने लिए प्लान बी, इट वुड बी ऑलवेज बी बेटर इफ यू हैव अ प्लान बी बिकॉज सी टिल 2023 आई डिड अपीयर इन यूपीएससी बट आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. But then after 2023, after doing my LLB, I got second rank in CLAT PG of 2024. ठीक है. So on the basis of that performance, I got selected in a PSU as a law officer. तो मेरी जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब अच्छी. तो अब उसके बाद मुझे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया था प्रिपेयर करने का. So that added as a good cushion for me. So and that cushion, that comfort, that sense of comfort really helped me to sail through the whole process this year because now I knew कि ठीक है जॉब है मेरे पास, I'm financially independent already, so anything above it would be an additional bonus. So मैंने बहुत स्ट्रेस फ्री होकर अपनी यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ करी थी. Now the next question comes is if you're doing job then how to make ensure that you're able to prepare for UPSC because it's so hectic. So see, ठीक है जॉब हमने ले लिया बट वी हैव टू नॉट सी दैट जॉब एज अ कंफर्ट स्पेस कि अब तो हम भूल ही जाए हमारा मेन गोल क्या था. दैट जॉब इज जस्ट योर स्टॉप, नॉट अ डेस्टिनेशन. योर डेस्टिनेशन इज यूपीएससी इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट. तो उस जॉब में वैसे फील नहीं करना है, ठीक है. So what I used to do was my schedule with job was pretty sorted. I was very much focused कि मेरी job जो थी 9 to 5:30 हुआ करती थी. As I was posted in Gurgaon only. So 9 to 5:30 मेरी job होती थी. तो उससे पहले मैं अपना 4 hours पढ़ा करती थी. 4 बजे उठ के 4 to 8 I used to study. I used to make out 4 hours in the morning and then when I used to come back from my office, I used to take a quick power nap. अगर मैं 6 बजे आई हूँ तो like 6:35 या 6:40 तक मैंने power nap ले लिया. तो that I used to do and once that power nap was taken then I used to get back to my studies. तो मैं शाम को भी 1 hour 30 minutes निकाल लिया करती थी, ठीक है. तो ऐसे मैं अपना वीकडेज पे भी 6 आवर्स अराउंड निकाल लिया करती थी और जब भी मैं ऑफिस में जो कम्यूट कर रही होती तो रास्ते में कोई वीडियो देख ली या फिर कोई न्यूज़ सुन ली. इस टाइप से मैं अपना टाइम यूटिलाइज किया करती थी और जो ऑफिस में ब्रेक होता था उसमें न्यूज़पेपर या पीटी 365 कुछ भी आईपैड पे पढ़ लिया. तो देखो थोड़ा मुश्किल होता है जॉब के साथ प्रिपेयर करना, अनडाउटेडली बहुत मुश्किल होता है बट इट्स गुड कि इफ यू हैव दैट क्वेश्चन विद यू इट वुड ऑलवेज बी वेरी गुड.
and you have to make out time for your preparation along with your job, और extra efforts लगेगी, इतना easy भी नहीं होता, but if you are focused, you are dedicated, then definitely you will be able to make out that time. ठीक है? So you could follow the same schedule, waking up early in the morning, utilizing 6 hours on the weekdays like this, 4 hours in the morning, 2 hours in the night after coming from the job, and then sleep at 10 p.m. and wake up at 4 a.m. again. On weekends, you should utilize the time to the maximum extent if you're working, because those are the full 2 days that you must be having. Okay, so that has to be done. Now, next, coming to this is about my job profile. Now, next is one very common question that I get now and then, that about the usage of social media. Just a second. Yes. So, coming about the use of social media. So, while I was doing preparation, I made ensure कि मैं अपना social media मैंने बंद ही रखा हुआ था, because there is a lot of distraction that comes with it. So I was not on social media throughout my preparation. No Instagram, no Facebook, nothing. So I think because it acts as a distraction in your preparation, you could use it in a productive manner also. But I don't think that's possible in today's time, because algorithm जो हमारा social media पे ऐसे हो चुके हैं कि तुम्हें काम की चीजें थोड़ी कम मिलती है, और बहुत random, you know, insignificant चीजें content ज़्यादा मिलता है. To avoid that, you have to make ensure कि it is very well suggested कि आप social media से दूर ही रहे, आप अपना focus रहे काम पे. Once you get selected, then definitely you can always come back to the social media. So that is my own personal suggestion, but that is not a universal case. I have seen people who use social media and then also they have cleared. I think that needs its own set of self control. Even if you are on social media, so you have to make out time limit. A lot of self time limit has to be taken care of. कि half hour ही चला रही हूँ मैं social media, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं. बट माई पर्सनल सजेशन इज यू शुड अवॉइड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू शुड बी fully dedicated to your preparation only. Social media in the form of reels and clickbaits have a lot of distraction in today's time. And and the other doubts that I've often seen is with regards to timetable. So I have discussed my timetable. Along with work, you can use this timetable, waking up early in the morning and then making out 6 hours. बट यूनिवर्सली ऐसा जरूरी भी नहीं है कि रोज ये टाइम टेबल फॉलो हो जाता है. हफ्ते में एक दिन मेरे साथ भी होता था. यूज्ड टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि देयर इज नथिंग एल्स हैपनिंग. सो वन डे आई यूज्ड टू थोड़ा सा लाइट पढ़ लिया, और थोड़ा सा मैंने सेल्फ ट्रीट. आई यूज्ड टू हैव दोस सेल्फ पैम्परिंग सेशंस कि मैंने कोई अच्छी मूवी देख ली, कोई टीवी सीरीज देख ली, और टॉक टू सम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो दीज थिंग आई यूज्ड टू डू. ऐसा नहीं था कि सातों दिन तुम सेम एफिशिएंसी के साथ होगी. देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज. You have to make ensure कि आपकी जो डिसिप्लिन है वो इससे इम्पैक्ट ना करे. Just give me a second. I am putting my laptop on charging because charging का issue आ गया इसमें. Just give me a second. Yes, okay. So continuing ahead. Timetable, ठीक है, we should make out 6 hours on a, if you are working then 6 hours on weekdays and a lot of 12 hours or something on the weekend. But this is not uniform. हमारा फोकस क्वांटिटी ऑफ टाइम से ज्यादा क्वालिटेटिव पे होना चाहिए कि मेरे टारगेट फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो इसके लिए हमें अपने एक मंथली टारगेट्स रखने चाहिए. कि आप एक बार सोच लीजिए, जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स है, 3 मंथ्स का आपने टाइमलाइन रखा है, तो कीप दिस टाइमलाइन कि इस महीने में ये सब्जेक्ट्स करूंगी. ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने मंथली टारगेट्स रखिए. फिर उसको ब्रेक कीजिए अपने वीकली कि अब मैं इस वीक क्या करूंगी. तो फॉर इंस्टेंस, अगर आपका सैटरडे तक आपके, अगर मान लो 80% ऑफ द टारगेट फुलफिल हो रहे हैं, तो आप संडे को थोड़ा मतलब मेक एंश्योर कि बाय संडे नाइट यू आर स्लीपिंग विद ऑल योर टारगेट्स फुलफिल. अब अगर मान लो सैटरडे नाइट को ही फुलफिल हो गई, यू कैन टेक देन हाफ डे ब्रेक ऑफ संडे डेफिनेटली. सो ऐसा कोई कंसिस्टेंट नहीं होता. अपने टारगेट्स के हिसाब से क्वालिटेटिव टारगेट्स रखने हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है. बाकी बट हाँ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन होना चाहिए. प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना. व्हाट ऑफन हैपेंस इज, हम सोचते हैं कि आज का काम हम कल कर देंगे, आज आंसर राइटिंग हम नहीं करते, कल करेंगे. नहीं,
ऐसा नहीं होगा। आंसर राइटिंग मेरी कमिटमेंट है, डेली बेसिस पे करनी है। हफ्ते में एक दिन लैक्सिटी चलती है कि एक दिन आप अगर बहुत थक गए हो तो रेस्ट ले लो, कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, लाइक आई सेड टीवी सीरीज या सेल्फ पैम्परिंग कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन हैज टू बी देयर फॉर द 90% ऑफ योर वीक, ठीक है? So that is the case. And now, see, one more challenge that I personally faced. So this was my fourth attempt. I would share this personal experience of mine. And fourth attempt and my fourth mains. And ऐसा नहीं था कि मेरा पहला अटेम्प्ट देके प्रीलिम्स के बाद आई यूज्ड टू हैव फ्री टाइम, पूरा एक साल साइकिल चलता था प्रीलिम्स मेंस का, एंड यू आर नॉट एबल टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट. So I used to feel upset also because of that. You know, perhaps this is not my cup of tea, and perhaps I'm losing my time, wasting my time. ना मैं मजे कर पा रही हूँ, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उसके रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे. इस टाइप के थॉट्स बहुत नेचुरल है आना, सबको आते हैं, ठीक है? बट यू नो, यू शुड हैव योर ओन इकोसिस्टम. लाइक आई हैव माय इकोसिस्टम इन फॉर्म ऑफ सम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड माय फैमिली हु वर देयर टू मोटिवेट मी थ्रू एवरी लॉस. तो कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो खुद के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द underlying why or why you were preparing for this examination, and that will definitely keep you going in for a very long run. डेडिकेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है इस जर्नी की, बिकॉज दिस जर्नी माइट बी लॉन्ग फॉर मेनी पीपल, और उस केस में अपने आप को अपलिफ्ट रखने के लिए बहुत एक अच्छा मेंटल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन ऑर्डर टू डू दैट, वन व्हाट कुड डू इज कि you know, my own mechanism was I used to be TV series fanatic. So मैं ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे देख लिया करती थी टीवी सीरीज, बट ये रहता था कि भाई 20 मिनट्स ही देख रही हूँ, उससे ऊपर नहीं मैं उसको एक्सटेंड कर रही. ऐसा नहीं कि मैं बिंज वॉच कर रही हूँ और मैंने पढ़ाई के टारगेट भूल गई. That did not used to be a case. That used to be only a means of refreshing my mind. And कभी कभी फ्रेंड्स वगैरह से बात कर ली, वॉक पे चले गए, तो इस टाइप की ना बहुत डाइवर्स एक्टिविटीज आपको इस जर्नी में रखनी है. एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 4 साल लगातार बुक्स में ही घुसे रहेंगे और आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे. यू विल डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड इफ यू डोंट हैव सम गुड वेरिड इंटरेस्ट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड मेंटल एग्जॉस्शन, have a very healthy lifestyle. Don't be totally into books कि आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए. फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को सिविल सर्वेंट भी अगर हम बन जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ. गुड मेंटल हेल्थ होगी, विल बी अ गुड सिविल सर्वेंट, विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द जॉब दैट कम्स विद इट, बिकॉज स्टडिंग इज जस्ट वन पार्ट. वी आर स्टडिंग फॉर समथिंग दैट इज वे बियॉन्ड अस एट अ पर्सनल लेवल. सो अपने वेरिड इंटरेस्ट को कभी नहीं भूलना, अपने पैशंस, अपनी हॉबीज, इन चीजों से कनेक्टेड रहना है. आइसोलेटेड, आई पर्सनली डोंट रिकमेंड आइसोलेशन. मतलब ऐसा भी नहीं कि यू हैव अ वेरी लार्ज फ्रेंड सर्कल कि तुम सोशलाइजेशन कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, बट एटलीस्ट 3-4 लोग जो आपके वेल विशर्स है, 3-4 फ्रेंड्स, वो आप अपने आसपास रखिए. बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी पॉसिबल टू मेंटेन सैनिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग रन. और डिस्ट्रैक्शंस भी खूब आते हैं देखो इस जर्नी में. हमारे पर्सनल इश्यूज भी आते हैं कभी कभी. अगर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो वो तो उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ हो ही नहीं सकता. तो उन डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज रखना है. दैट्स व्हाई आई से कि सोशल मीडिया से दूर रहो. ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट माइट हैपन. आवर ओन मेंटल ब्लॉकेज डज हैपन एट टाइम्स, एंड देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल एज वेल एज पर्सनल सर्कमस्टेंसेस दैट हैपन व्हिच कैन impact our schedule now and then in our preparation journey. So उन चीजों को मिनिमाइज रखने के लिए पहली बात तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो कि एक डिस्ट्रैक्शन इस टाइप की तो जो हमारे कंट्रोल में है अवॉइड करना, वो हम करें. बाकी कुछ भी आता है ठीक है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. कोई पर्सनल एक्चुअली कोई ऐसी एक्सीजेंसी आ गई तो एड्रेस दोस. यू नीड टू हैव सम कंट्रोल ओवर योर हेड टू understand कि which thing is relevant for you at this point and which thing is not. You have to see your life in a form of years down the line rather than this present moment. तो इस तरीके से हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड हमें रखना है. हमें अपने मेजर जो हमारा मकसद है उस पर फोकस रखना है. We have to separate the grain from the chaff and focus only on the things that matter, which could help you in building
in doing good in this journey, which could help you in having a good mental health, in a good पॉजिटिविटी अराउंड यू, उस टाइप की चीजें ही रखनी है लाइफ में. नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर कर दो. ठीक है, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं कि आपको डिमोटिवेट करते हैं नाउ एंड देन, यू नो यू आर इन दिस जर्नी फॉर सो लॉन्ग, क्या कर रहे हो. इन चीजों को थोड़ा सा हमें कुछ चीजें सुन के अनसुनी रखनी होती है. ये चीज थोड़ी सी माइंडफुलनेस इस जर्नी में आपको लेके आनी होगी, एंड दैट कुड बी डन इन द फॉर्म ऑफ यू नो मेडिटेशन ऑल्सो, इफ यू आर एबल टू डू. मैं कभी मेडिटेशन कर नहीं पाई, बट मैं इस टाइप की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती थी कुछ प्रोडक्टिव चीजें करके, कि यू नो सेल्फ मोटिवेशन दिया, मूवी देख ली. तो इतना ही सबका अपना एक वे होता है. ठीक है, कि नेगेटिविटी को कैसे खुद पे टच नहीं होने दिया. और कभी कभी मुझे इतना लो फील होता तो मैं क्या करती थी, मैं किसी टॉपर की वीडियो देख लिया करती थी जिसके 3rd या 4th अटेम्प्ट में जाके हुआ है, उसके स्ट्रगल से रिलेट किया करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि यू नो आई एम नॉट अलोन इन दिस. ठीक है, so these are the general as well as various aspects which I have shared so far with you, and I hope it does help you. Now I would be reading the doubts, and I would address them all. So starting from the very beginning, I read newspaper, but I just forget everything at the end of the day. See, newspaper reading is a mental exercise that has to be done on a very, very daily basis. ठीक है, इसमें अपने माइंड को इतना प्रेशर नहीं करना कि चीजें लर्न होनी चाहिए. ठीक है, न्यूज़पेपर को उस तरीके से रखना है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, एंड वंस यू आर अकस्टम्ड विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, तो अपने जो भी आप न्यूज़पेपर में कंटेंट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उनको सिलेबस से रिलेट करके यू कैन डू वन थिंग, आप वन नोट पे अपने फोल्डर्स बना सकते हैं. तो एक लाइन में लिख दिया कि आईआर में रिसेंटली ऐसे हुआ, एंड दिस कुड बी एडेड टू एनी मेंस आंसर राइटिंग. इस तरीके से करना, उसको इतना बर्डन नहीं लेना लर्न करने का न्यूज़पेपर. ये मेक एंड श्योर करने कि उसको ऐसे एक्सरसाइज लो, और जो लर्न करने का है वो तो यार कोचिंग वाले अपने कंपाइलेशंस बनाते ही है न्यूज़पेपर से इन द फॉर्म ऑफ पीटी 365, तो वो तब चीजें लर्न हो जाएगी. Which book you prefer for ancient medieval history or new edition? So I refer to Poonam Dalal Daya ma'am's book, Poonam Dalal Daya book of ancient medieval history. But even old NCRT of old Tamil Nadu NCRT is also good. You could refer to that. I've heard some of my friends who have been preparing and cleared it have referred to that book. It's pretty good. Where did I get my motivation? So my motivation was my innate desire to be a civil servant. Nobody forced me to prepare for UPSC. I had my own personal reason to prepare for it. I had this very firm goal in my head that this as a career would be very good and productive and intellectually stimulating for me in the long run. And my family, of course, I've seen my father working. So he has worked so diligently in the field of education. So his work ethics always inspired me. People are working so hard out there. So that thing acted as a motivation for me. I am in a position, I'm already in a very privileged position that yes, I'm able to prepare. I have that sort of opportunity to prepare. So I used to see that as a blessing. So उसके आगे बस मुझे ये था कि अब पढ़ाई ही करनी है. I did not have any other extra burden. So I used to see that as a good privilege for me. So that was my motivation कि इतनी अच्छी starting position मिली है. I've got my supportive parents. Then all you have to do is study. So just study. ठीक है. और मोटिवेशन बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी प्रोडक्टिव और अच्छे गुड फेथ वाले लोग रहे हैं. तो इस टाइप का, if you have a very good friend circle, they also act as a very good uplifting spirit for you. Prelim strategy I've already shared. PYQ, you could just search on the Amazon topic wise prelims PYQ. Any PYQ can be referred. इसमें कुछ ऐसे नहीं है. What to do after completing NCRT? So NCRT, like I've already shared, NCRT acts as the foundation of our preparation. So once that is done, you have to shift to the core books, which I've already discussed the sources. You could refer to the video recording later on if you have missed it. Skipping medieval and world history for prelims is good or not? World history does not come in prelims. And no, medieval, you must not skip any part of your syllabus, be it prelims or mains. कोई part syllabus का नहीं छोड़ना है, because every marks matter in mains also. If you see even the final selection list, एक marks पे 10 rank ऊपर नीचे होती है, and in 5 marks there's a difference of 50 ranks. So every mark matters.
So every you have to fight for every marks in prelims as well as mains. तो कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं करना, ये मिस्टेक डेफिनेटली नहीं करनी है, स्पेशली फॉर इफ देयर एनी लॉ ऑप्शनल एस्पिरेंट आउट देयर. Definitely don't skip any topic of law because the questions are coming from the most fringiest of the topics. ठीक है? Which book did you choose for economy, Brunal? I've already. कॉलेज पर फोकस करें यूपीएससी पर. सो इट डिपेंड्स ऑन विच स्टेज ऑफ कॉलेज यू करंटली आर. इन द लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट यूपीएससी जर्नी में ऐसे नहीं करना कि अपना कॉलेज लाइफ हम बिल्कुल ही मतलब एंजॉय करना ही उसको छोड़ दे, वो चीज नहीं करनी. एंजॉय योर कॉलेज लाइफ. इन द लास्ट ईयर और समथिंग यू कैन शिफ्ट टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन. PYQs are everything in this examination. Definitely, they help you a lot. They give you a direction. PYQ से ज़्यादा direction. It confines a limit कि इतना ही पढ़ना है, because एक टॉपिक पे पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, but it gives us direction. It gives us what exactly UPSC is demanding for us. For science and tech, ma'am, and what about answer writing? Okay. For science and technology, in the main syllabus, there are specific headings of nanotechnology, biotechnology, space. So, I joined Dipin sir's Kava class, which I skipped to mention before. तो उसमें ना साइंस एंड टेक के टॉपिक वाइज काफी अच्छे नोट्स उन्होंने प्रोवाइड करे थे, तो मैंने उधर से ही अपने नोट्स बनाए थे साइंस एंड टेक के. बाकी व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, तो मैंने नोट्स बना रखे थे, उसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी के जैसे कोई नोट्स बनाए, तो मैं गूगल भी करा करती थी कि रिसेंटली क्या हुआ है इसमें, और मैं एग्जांपल को अपने नोट्स में लिखा करती थी, पीवाईक्यूज को रेफर किया करती थी, और जो मेंस 365 में कुछ कंटेंट मिल गया उसके थ्रू मैंने कंबाइन करके अपने खुद के नोट्स बना रखे थे हर टॉपिक के. और जो न्यू चीजें हो रही है उनको मैं डेफिनेटली कवर अप किया करती थी, जैसे गगनयान हो गया, लास्ट ईयर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. चंद्रयान क्वेश्चन आल्सो केम बिकॉज इट वाज वेरी मच इन द करंट अफेयर्स, तो इनके मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे. अबाउट आंसर राइटिंग हैज टू बी डन इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट मैनर. ठीक है? About answer writing, if I personally tell, in between prelims and mains, what I used to do, convert IAS as a platform. उस पे मैं डेली बेसिस पे 3 आंसर तो डेफिनेटली लिखा करती थी, 3 अपने लॉ ऑप्शनल के, 3 अपने जीएस के, और उस पे अपलोड कर दिया करती थी. बिकॉज कन्वर्ट IAS प्रोवाइड्स दैट प्लेटफॉर्म कि मैं अपनी मर्जी के क्वेश्चन कोई सी भी पीवाईक्यू के उठा के चाहे 3 करे 4 करे वो अपलोड करते और चेक होके भी आ जाया करते थे. और बाकी मैं मॉक किया करती थी फॉरम आईएएस के, और टॉपर कॉपी को भी मैंने खूब रेफर किया आंसर राइटिंग में टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट बेटर आंसर. ठीक है? ये प्रैक्टिस बट आंसर राइटिंग की आप जब प्रिपरेशन में घुसेंगे आपको डेफिनेटली इसमें काफी हेल्प मिलेगी. टॉपर कॉपी अगर आप देखेंगे, बाकी यू विल गेट गुड इनपुट्स आल्सो वंस यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग. Should I go all in for UPSC or get a job first? That's a very personal preference. See, मैं ये सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने भी जॉब जब स्टार्ट करी थी ना, मैं यूपीएससी की अपनी जर्नी चल ही रही थी तब मेरी, तो मेरा जो कोर था प्रिपरेशन का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट कि जॉब के साथ मैं मैनेज कर पाई थी. अब क्या होता है, काफी लोग बिल्कुल जॉब के साथ बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते, बट आई सीन सम एग्जांपल्स आल्सो कि हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो टेक द टाइमलाइन ऑफ 2 इयर्स और समथिंग, कि आप जॉब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन टाइमलाइन रखिए, टुडे 4 आवर्स ऐसे 6 आवर्स के बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और चीजें करें. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी कोर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो गिव योरसेल्फ मोर टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग विद जॉब फर्स्ट, बिकॉज एक साल में जॉब के साथ और यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना could be a challenge. ठीक है? तो give yourself that sort of timeline. I would suggest first you should try for UPSC. मैंने जैसे 23 के बाद मैंने एक गैप ईयर लिया था 24 में, then I appeared this year in 25 only, despite getting selected till interview in 23. So I took that break because I wanted to make ensure कि मैंने जो अपनी preparation start करी थी, तो आई डिड अ वेरी ग्रेव मिस्टेक कि मैं 2021 में जब अपना पेपर में अपीयर करा था, आई वाज जस्ट रेडी फॉर प्रीलिम्स नॉट फॉर मेंस, एंड दैट रियली बैकफायर्ड मी एंड टुक 3 एंड 21 22 के मेरे अटेम्प्ट्स इस वजह से खराब भी हुए थे बिकॉज़ आई वाज नॉट मेंस रेडी. एंड देन 23 में आई प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर द मेंस इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, और उससे पहले मेरे 2 साल जो अटेम्प्ट्स रहे थे उसमें भी काफी थोड़ा बहुत बिल्ड कर दिया था मेंस का फाउंडेशन. बट आफ्टर 23 आई रियलाइज कि यार मेंस की
तैयारी और सॉलिडिफाई करने के लिए पूरा 1 साल इंसान को देना चाहिए। तो 1 साल आई थिंक अ पर्सन शुड डेडिकेटेडली गिव टू यूपीएससी प्रिपरेशन बिफोर अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स। दैट इज व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट। डोंट डाइव इनटू द एग्जामिनेशन कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि मेंस का क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी, बिकॉज दैट वुड वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी आल्सो। Actually, of Tamil Nadu edition, I don't know because I refer to Poonam Dalal Dahiya. Ma'am, how to manage studies or time while pursuing regular master's course and joining offline UPSC coaching in Delhi? You'll have to manage your timetable. Like I said, कि अगर कोई रेगुलर मास्टर्स कोर्स कर रहे हो तो सुबह जल्दी उठो, शाम को भी टाइम निकालो, उसको आपको अपने कॉलेज के शेड्यूल के हिसाब से मॉडिफाई रखना होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, कीप दैट थिंग इन योर हेड। यू वुड हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू बी रेडी कि मेहनत करनी है, ऐसे बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा कि सब चीजें मैनेज कर लेंगे। तो you'll have to make out some extra time, make some sacrifices, some social, अपने जो social engagement उनको थोड़ा कम करना होगा ताकि आप अपना रेगुलर कोर्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सके। What actually works with PYQs? So PYQs help you in getting that direction. So firstly in prelims it gives you sort of mental exercises. This is the sort of questions UPSC is asking in the PYQs. और इस तरीके से हम अपना एनालिसिस यूज करते हैं अटेम्प्ट करने का, दैट रियली हेल्प्स। इन मेंस पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हमें पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहे होते हैं, तो पीवाईक्यूज का काफी उसमें यूज होता है। लाइक ऐसे अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं, कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो पहले पीवाईक्यूज लिख लो कि ये 4-5 पीवाईक्यूज इसमें से पूछे गए और उसी के लाइन पे अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। Not able to complete paper due to time and also not analyzed PYQ. In mocks like Anubhav and Vyas and scoring on 50 to 60, what to do? You have to see where you are lagging, identify those areas. मैं रजिस्टर आप करती थी किसी मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आई यूज्ड टू डिफरेंशिएट कि इस टॉपिक में मेरे कटे, इस टॉपिक में कटे, इस टॉपिक में कटे। अब जब मैं फिर से पढ़ रही हूँ तो मैं उन टॉपिक्स पे डेफिनेटली बहुत फोकस किया करती थी। So this is the strategy that I used to do, and practice as much as you can. There's no easy solution to scoring less marks. It's going to be difficult. अपने practicing करनी है mocks की, PYQs की, revision करने, multiple revision. There's no other solution to this. उसके revisions आप करते रहिए और revisions भी इस तरीके से कीजिएगा कि आपके mocks में जो topics आपके लग रहे हैं आपके weakness है, उन चीजों को revision के time पे अच्छे से cover करें। Sectional mocks or sectional PYQs, both have to go hand in hand. मॉक्स भी देने हैं, PYQs भी करने हैं, एक चीज से नहीं चलता सिर्फ, क्योंकि मॉक्स प्रेजेंट ट्रेंड बताती है कि प्रेजेंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, है ना। और देखो PYQs तो हमें बताते क्या हो चुका है। मॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है PYQs के साथ बिकॉज मॉक्स में हमें रिसेंटली क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, रिसेंटली क्या टॉपिक्स न्यूज में है, क्या हमारे आसपास हो रहा है, वो चीजें हमें ज्यादा डायनेमिक तरीके से पता चलती है, तो उसके लिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है। आई एम फीलिंग बोरिंग, so someone has said that that person is feeling bored while studying. So like I said, have some good outlet, कुछ अपने interest, make out time of 1 hour or something जिसमें आप अपने आप को self treat कर रहे हैं। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रोडक्ट मतलब फन चीजों में भी रखना है ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो जाओ स्टडी से। इफ 60 to 70% of your day has to be studies, 30 to 40% of your day could be your own personal interest, जो भी आपको करना है, अपना किसी के साथ आपको सोशल एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, कोई मूवी देखनी, इस तरीके से रखना। यू कैन नॉट स्टडी 100% ऑफ योर डे। You have to divide your day in 8 hours. 24 hours को 8 hours में कीजिए। 8 hours studying, 8 hours your own personal, whatever you want to do, your daily chores as well as your own personal interest. 8 hours sleep. That is the day, how the day has to be divided. Which mentorship plus test series is good? I did not take any mentorship. Test series in prelims, I realized Next IAS, Vision, and Forum IAS. All these three are good for prelims. For mains, I refer to Forum IAS test series. For essays, particularly, I really liked Vision IAS. For essay test series, Vision IAS is very good.
मैम प्लीज आज को ठीक है. So often a question is asked कि मैं सिर्फ लेक्चर पे फोकस करूँ या अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करूँ और कैसे मैनेज करें. सी लेक्चर्स में कहूँगी कि लेक्चर्स तो ठीक है, दैट इज द पैसिव लर्निंग दैट वी आर डूइंग. इफ यू आर लिसनिंग टू एनी लेक्चर दैट इज अ पैसिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई लेक्चर कर रहे हैं तो आप उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए उसी टॉपिक पे, उसको रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू टेक हैंड इन हैंड. लेक्चर को बहुत अनड्यू वो नहीं देना. अगर आपका कोई 2 आवर्स का लेक्चर है तो वो तो 2 आवर में फिनिश हो गया ना, उसके आगे तो 6 आवर्स अभी बचे. इफ यू आर टेकिंग एवरेज 8 आवर्स ऑफ स्टडिंग तो उसी टॉपिक को आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से मैनेज करना है. And help from AI in preparation. See, I did not take any help from AI in preparation. Means में कुछ टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी के हुआ करते थे तो मैं थोड़ा सा ये कर लिया करती थी कि चैट जीपीटी से पूछ लिया विच रिसोर्सेज आर इन न्यूज, ताकि उनकी लोकेशन वगैरह देख लूँ. इस टाइप से किया करती थी. इंटरव्यू में मैंने जैसे डैश के लिए हरियाणा से रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, इस तरीके से यूज किया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड नॉट यूज AI फॉर प्रिपरेशन. You have never said anything. कोचिंग कहाँ से की? कोचिंग आई टोल्ड आई टुक फाउंडेशन कोर्स एट विजन आईएएस इन 2019. आफ्टर दैट वहाँ से मेरा फाउंडेशन कोर्स हुआ था. फिर मैंने टेस्ट सीरीज में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मींस में आई रेफर टू फॉरम आईएएस. ठीक है. Is it very important to have writing skills? See, writing skill is something कि सबके, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत नेचुरली होती है, वो प्रैक्टिस के साथ आती है. राइटिंग स्किल्स कोई इननेट वो नहीं होता. इसमें क्या होता है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट इम्प्रूव्स. और प्रैक्टिस भी इस तरीके से नहीं कर रही कि हम कोई रेफर ही नहीं कर रहे. यू व्हाट यू कैन डू इज, इसमें एक चीज बहुत मैं अच्छी स्ट्रैटेजी मानती हूँ. आप एक प्रॉपर कॉपी लीजिए. कोई सा भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री खत्म कर दी, हिस्ट्री की किसी ने टॉपर कॉपी अपलोड हुई है किसी की GS1 की, उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसको आप आंसर कीजिए एंड देन कंपेयर योर आंसर्स विद द टॉपर्स आंसर्स. उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू नो वेयर यू आर लैगिंग, बिकॉज दैट पर्सन जो टॉपर है जिसने भी क्लियर किया यूपीएससी, दैट हैज अ वेरी क्रेडिबल आंसर कॉपी की ऐसे आंसर लिख के हुआ है क्लियर. So it would help you in understanding your gaps कि you know आप अपने आंसर्स कंपेयर करेंगे उसी क्वेश्चन के टॉपर ने जो लिखे, तो you'll understand कि हाँ ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकती थी. तो उस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी विद टाइम टू टाइम. एंड जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज चेकर से, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी. What was the general theme you tried to use in answer that somehow was different in general? I used to use value addition a lot. मैंने जैसे GS3 में ना बहुत रियल टाइम एग्जांपल्स लिखे हैं. ठीक है, कि साइंस टेक में बहुत ही कि कुछ भी गूगल ने इनोवेशन करा, डीप माइंड, जो भी इनोवेशन हो रहे थे मैं उनकी बहुत डायनेमिक एग्जांपल्स लिखा करती थी. वैल्यू एडिशन इज द की. हर सब्जेक्ट के अपने होते हैं. जैसे GS2 में आप केस लॉ कुछ डाल लें अपनी तरफ से, यूनिक, दैट वुड डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर पीपल. सम गुड कोटेशन इफ यू कुड यूज, सो दैट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग योर आंसर. और अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल रखिए. जैसे स्पेशली मतलब कोई सा भी अगर हम आंसर लिख रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, तो एथिक्स में क्या कीजिए, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको मल्टी डायमेंशनल तरीके से कीजिएगा. जैसे एथिक्स में ना पीयूष सर की एथिक्स क्लासेस है, मैंने वो अटेंड करी थी. उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक एंश्योर कि आप मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिख रहे हैं. तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी आंसर है एथिक्स का, इफ आई टेक एग्जांपल, इंडिविजुअल लेवल पे लिखिए, सोसाइटल लेवल पे, नेशन लेवल पे, कुछ उसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हुआ. तो इस तरीके से आप उस चीज को डिवाइड कर सकते हैं. इस तरीके से आप अपने आंसर डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर. रिपीटेटिव पॉइंट्स नहीं लिखने. मेक इट श्योर दैट यू आर राइटिंग डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स, स्पेशली फॉर अ जनरलाइज्ड टॉपिक. Actually, someone has asked about sociology coaching. I am not from sociology optional. My optional is law. Difference between mock interview and UPSC interview, a lot of difference. UPSC interview is something else. Mock interview फिर भी थोड़े डैश और उसके सेंट्रिक रहते हैं, बट रियल इंटरव्यू इज मोर ऑर्गेनिक.
बेसिकली मॉक इंटरव्यूज में क्या फोकस होता है, their focus is to cover maximum dimensions of your DAF की maximum हम diversity cover करें, but real interview is very organic. उनका ये नहीं होता कि मैक्सिमम, उनको ये होता है कि कन्वर्सेशन चल रही है, इससे ये बात निकली, इससे वो निकली, उनको इट इज इन दैट फॉर्म. तो बहुत डिफरेंस है. रिवीजन में इशू, देखो रिवीजन में इशू क्या, आप अपना ना रिवीजन में इशू पहली रिवीजन में आता है थोड़ा इशू, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, बट धीरे इसमें ना एक एक्टिव रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप पेज में हाईलाइट अपने लिमिटेड चीजें रखें ताकि आप रिवीजन में ना उन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़े. तो ये चीज आप डेफिनेटली कीजिएगा कि आप रिवीजन में सिर्फ अपने हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़े और एक्टिव मेमोराइजिंग कीजिएगा कि कोई पेज खुले कि हाँ मेरे को क्या क्या याद आ रहा है इसमें से, अच्छा ये चीज क्या हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप रिवीजन कीजिए. इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. You are a coaching student, so still I make my own notes. See, coaching मैं ये मानती हूँ कि इट डिपेंड्स. काफी बारी कोचिंग में अगर मान लो बहुत इलेबोरेट तरीके से लिखवा रहे हैं, तो इन दैट केस यू शुड हैव योर ओन नोट्स. ठीक है. और ऑल्सो अगर कोचिंग के आपके नोट्स है भी तो उसको ना बिल्कुल बिल्कुल स्टोन में नहीं मानना कि वही अब जो है, उसमें अपने पॉइंट्स ऐड करने. कोई से भी अगर आप अपने कोचिंग के नोट्स भी बना रहे हैं कोचिंग पे, तो अपने उन नोट्स के बाद उस टॉपिक खत्म होने के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा जिसमें आप अपने इनपुट्स लिख रहे हैं अपना, और उसमें डायनेमिक उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप कीजिएगा. ठीक है, इस तरीके से रखना है. Okay, there's a doubt about medical science is optional. Whether that person should change his optional or continue with medical sciences. That's a very personal choice, you know, because our All India rank 1 is from medical science is optional. If you're very good at it and if you feel that you'll be able to do wonderfully well, if you have some proficiency in it, then definitely you can. But it is generally recommended to have very concise optional. But I myself am a lawyer. I chose law optional, so it's about interest. I do understand how difficult it is to change the options from the subject that you've actually studied. So definitely you can go for medical sciences because there are examples in the past. Even this year, our only rank 1 is from medical science, so it's not impossible. But it depends whether you have interest or not. Whichever optional you are choosing, your interest should be there in that optional. ऐसा नहीं कि क्योंकि लंबी जर्नी हो सकती है, इंटरेस्ट वाला ऑप्शनल होगा तो उसको आप लंबे टाइम तक उसको मेंटेन कर पाएंगे, उस ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे. इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये रहता है. Which subject to start preparation with? Very personal choice. कोई से भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो. जनरली प्रेफर जिसमें इंटरेस्ट हो उससे स्टार्ट करो. मेरा पॉलिटी में था तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था. कुछ लोग ज्योग्राफी से करते हैं बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज पहले पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में. What mistakes I made? I made a very, like I already shared in 2021 attempt, I directly jumped into giving attempt. सोचा था चलो एक साल अटेम्प्ट देके देखते हैं फिर देखी जाएगी, और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था and I was not prepared for mains. So that mistake should not be done. हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करो पहले, उसी के बाद अटेम्प्ट दो. You do not want your attempts to get wasted because if your prelims get cleared and not able to you're not you have not prepared for mains, then it becomes a huge challenge and that 3 month becomes quite a very hectic journey. So make ensure that you're prepared wholly, you have made your mains notes, you are prepared for prelims and then appear. That should be the case. And one more, in my first मतलब आंसर राइटिंग को इसमें इग्नोर नहीं करना. आई सीन मेनी पीपल हु आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट इन देयर आंसर राइटिंग स्किल्स एंड दे डोंट डू आंसर राइटिंग. दैट शुड नॉट बी डन. आंसर राइटिंग करनी है, बिल्कुल करनी है. कितना ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है इस चीज में, बिकॉज वहां पे जाके हमें रियलाइज होता है कि नॉलेज होना अलग चीज है, उसको रिप्रोड्यूस करना इज अ वेरी डिफरेंट चैलेंज. ओके, देयर इज ऑफन अ क्वेश्चन कि ऑनलाइन हम अपने घर पे रह के तैयारी करें या फिर कोचिंग लेके दिल्ली में रह के करें. सी ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी सिर्फ राजेंद्र नगर में रह के होती है, करोल बाग में रह के होती है. दैट्स अ मिथ. आपकी तैयारी घर पे रह के भी हो सकती है.
आप बट इसमें एक और केवियट है, बहुत पर्सनल होता है ये चीज भी। कुछ लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन हेल्प करती है, कुछ लोगों को लाइब्रेरी जाके अच्छी पढ़ाई होती है जब वो औरों को देखते हैं पढ़ते हुए। इफ यू दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन देन यू कैन लिव इन दिल्ली, बट इफ यू आर सो मच इंटरनली मोटिवेटेड कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं अकेले, तो stay at home. It's always better to stay at home. I have always prepared from in between prelims and mains I've always prepared from home only, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा खाने का सॉर्टेड रहता है, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन होता है। बिकॉज क्या होता है, ऑफन दिल्ली में आते हैं बच्चे करोड़ बाग नागेंद्र नगर में, वो मेजर फोकस करने पढ़ाई पे फोकस करने के बजाय घूमने फिरने में ज्यादा करते हैं। तो वो चीज अगर अवॉइड कर सकते हो लिव इन दिल्ली, अगर तुम्हें लाइब्रेरी में बैठ की पढ़ाई होती है, वरना इवन इन योर होम टाउन यू कैन जॉइन एनी लाइब्रेरी। ये बहुत पर्सनल है ये, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दिल्ली में रह के ही तैयारी होती है। घर पे बैठ के आजकल के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आर अवेलेबल आउट देयर। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन अवेलेबल है। बुक लिस्ट I've already shared. इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होना चाहिए। पीटी 365 और मेंस 365 से इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करता है। और मेंस में मैंने जैसे दिपिन सर का सीएवीए कोर्स ले रखा था इंटरनेशनल रिलेशन में, इट्स वेरी गुड। Book list I've already shared. How to approach international relation done. लॉजिकल रीजनिंग और आरसी से अगर आप है डरे हुए, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मिलेगा। लाइक आई हैव शेयर्ड द सोर्स, जो से भी टॉपिक्स वीक फील होते हैं, ओनली आईएएस की प्लेलिस्ट है काफी अच्छी, सीसैट की आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, टॉपिक वाइज उसमें अपलोडेड है, ठीक है। ओके, आई थिंक नाउ द क्वेश्चंस आर बिकमिंग रिपीटेटिव। How to remember all the news covered in the monthly magazine for 2027? Magazine seems to be bulky to remember. See, जो monthly magazines हम पढ़ रहे हैं, आप उनको पढ़िए, उनको डेली बेसिस पे उसको ब्रेकअप कीजिए कि मैं 15 पेजेस डेली बेसिस पे पढूं। 15 पेजेस अगर आप पढ़ेंगे तो आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन ले रहे होगे और आप ज्यादा अच्छे से अपनी रिटेंशन मेमोरी रख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी मंथली मैगजीन पढ़िए, 15 पेजेस पर डे। एक मंथली मैगजीन अप्रोक्सीमेटली 150 पेजेस की होती है, तो 15 डेज मैक्सिमम में आप कवर अप कर लोगे अपनी मंथली मैगजीन, ठीक है। इस तरीके से उसको ब्रेकअप कीजिए। और जब प्रीलिम्स या मेंस आ रहा हो तो प्रीलिम्स के टाइम पे ये मत करना कि हर मंथ की मैगजीन उठा के रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल बिकम सो बल्की। 150 इनटू अगर हम 10 महीने भी ले रहे हैं तो 1500 पेजेस थोड़ी हम रिवाइज करेंगे, है ना। तो कोचिंग आपको रेडीमेड मटेरियल प्रिपेयर करके दे रही है पूरे साल का, जो एक क्रक्स है। तो पीटी 365 कीजिए, दैट मंथली हैज टू बी डन एज एन एक्सरसाइज बेसिस, कि आप डेली बेसिस पे आप अपने दिमाग में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है और आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है वो चीजें और आपको प्रीलिम्स में वो हेल्प करती है। कुछ भी मेंस का आपको लगे तो आप अपने नोट्स में जो आपने टॉपिक वाइज नोट्स बना रखे उसमें ऐड कर लीजिए। इस तरीके से अपनी मंथली मैगजीन रखनी है। फाइनल स्टेज पे सिर्फ पीटी 365 जो कंपाइलेशन ईयरली है उसी को पढ़िए, ताकि आपका कम पेजेस में ज्यादा रिवीजन हो पाए, है ना। Daily schedule I have discussed already. Core book for mains, there are no core books for mains. Core books is आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं। और वैल्यू एडिशन मटेरियल विजन का काफी अच्छा है, आप उधर से ले सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज काफी सॉर्टेड है। इकोनॉमी में मैंने भी आपको मल्तानी सर का बताया, ये मैं चीजें शेयर कर चुकी हूँ, आप अगर रिकैप करेंगे ना वीडियो। हाउ टू प्रिपेयर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में ना मैंने एक तो मेंस 365 करी थी, और जो विजन जो कावा की जो थी नितिन सर की क्लास है उसमें काफी अच्छे नोट्स थे इंटरनल सिक्योरिटी के, तो मैंने टॉपिक वाइज अपने बना रखे थे। और अगर आपको सिर्फ स्टैटिक बुक चाहिए, अगर आपको सिर्फ स्टैटिक बुक जाननी है तो स्टैटिक बुक में आपको एक रेड बुक है फॉरम आईएएस की, उसमें टॉपिक वाइज इंटरनल सिक्योरिटी काफी अच्छे से कवर्ड अप है। आप उधर उसको अपना बेस बना के वैल्यू एडिशन मेंस 365 या फिर डिफरेंट सर की क्लास से कर सकते हैं। Okay, so all the routes have been covered, I believe. I have went through all the routes. So thank you so much for this session, for joining. Okay, there's one more last out. Preparation of UPSC should be started from BTech second year itself. If yes, then how much preparation should be done before passing out of BTech? See, I would suggest कि आप BTech से पहले, it depends how much time you have.
लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि अपनी स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन में आप सेकेंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एनसीईआरटी और बेसिक सोर्सेज को कवर करके आप अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपका टारगेट क्या है इस पे डिपेंड करता है, इसमें कोई आइडियल वो नहीं है इतना सिलेबस कवर होना चाहिए, बहुत पर्सनल आपके टारगेट से आपको 2027 में देना है या 28 में देना है, उस हिसाब से आपको सिलेबस कवर करना है। बस आपको मेक इंश्योर करना है कि जिस भी प्रीलिम्स में आपका अपीयर हो रहे हैं उससे पहले आपका सिलेबस कवर्ड अप होना चाहिए, मेंस तक का। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ के बैठ के, जो ऑप्शन और जीएस है वो सब है। Okay, so these are the relevant questions which I could understand. फोमो जो मल्टीपल रिसोर्सेज का है वो तो देखो कंट्रोल करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही रिसोर्स पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ये आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको अपने रिसोर्स पे ट्रस्ट करना है, एक ही रिसोर्स रखना है, मल्टीपल रिवीजन उसी रिसोर्स से करना है। आई एम all the toppers are living example of this only. They have focused just on one resource and did multiple revision and then only they have got selected. तो वो आपको अपनी टेम्पटेशन को, उस फोमो को आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी नोट्स में नोट्स आप विजन आईएएस का काफी अच्छा वैल्यूएशन मटेरियल आप टॉपिक वाइज उधर से बना सकते हैं, और अपने केस लॉस डेफिनेटली पॉलिटी के उसमें रखने, आर्टिकल्स एंड केस लॉस का मेंशन डेफिनेटली होना चाहिए, सेकंड एआरसी का यूज होना चाहिए, जो भी कमिटीज है ये आपके नोट्स में डेफिनेटली इंकलकेटेड होने चाहिए। बाकी यू कैन रेफर टू प्रॉपर कॉपीज एज वेल which are available on Vision IAS, how they have approached the quality answers। जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से लोग आंसर लिख रहे हैं, है ना। unnecessary information उसमें कुछ नहीं डालनी है। Okay, so with regards to mismatch cases in document verification, this is something that is not in my ambit. So वो चीजें बाद में sort out कर देते हैं DOPT, no need to worry about that. So it was a very nice, insightful session that I had with you all. I hope I was able to clear maximum of your doubts, and hope I could help you to understand how to begin UPSC preparation and how to have the subject-wise strategy. My last suggestion is this: don't worry, be disciplined, be honest with yourself. If you're dedicated enough, have one source, and if you're dedicated enough, if you have that, एक अर्जुन के तीर जैसा गोल, definitely you'll get that, but you'll have to be patient, you have to be consistent, you have to be disciplined. Without that it becomes very difficult, ठीक है। सो आप बिल्कुल इसमें डरना नहीं है, कभी कभी जर्नी लंबी भी हो जाती, कोई बात नहीं, हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ, in God, in everything, have, if you're giving your all and then also not able to clear, don't worry, your time would come, definitely it would come. And for those who are preparing, who have just started preparation, it might be overwhelming at the beginning, but trust me, as you progress ahead it will get very normal, you'll understand, you'll figure out stuff, don't worry about it, but just have one strategy and focus on that only। एक बार अपना माइंड बना के उसी पे करना है, बार बार री-स्ट्रैटेजाइज नहीं करनी चीजें, ठीक है। So I wish all the very best to everyone, and I hope all of you study well and are able to pursue your dream of becoming a civil servant. And if you have any doubts, my Instagram handle is @Kirti KIRT dot PANWAR, Kirti.Pawar. So this is my Instagram handle that you can contact me there. Okay, so thank you so much for joining, and a very good night.